सवाल नंबर 1, किस जानवर के जिस्म में शैतान का थूक शामिल है? आपके ऑप्शन हैं ए बिल्ली, बी कुत्ता, सी सांप, डी बिच्छू। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी कुत्ता। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसके जिस्म में शैतान का थूक शामिल है। सवाल नंबर 2, क्या नमाज़े जनाजा कज़ा करके पढ़ी जा सकती है? आपके ऑप्शन हैं ए जी हाँ, बी जी नहीं, सी 1 घंटे बाद, डी 2 घंटे बाद। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी जी नहीं। नमाज़े जनाजा कज़ा करके नहीं पढ़ी जा सकती है। सवाल नंबर 3, किस दिन किसी भी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती है? आपके ऑप्शन हैं ए इशराक के वक्त, बी ज़वाल के वक्त, सी मौत से 1 घंटा पहले, डी मौत के वक्त। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी मौत के वक्त। मौत के वक्त किसी भी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती है। सवाल नंबर 4, क्या एक इंसान की उम्र दूसरे इंसान को लग सकती है? आपके ऑप्शन हैं ए लग सकती है, बी नहीं लग सकती, सी इंसान की मर्जी, डी तीनों नहीं। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी नहीं लग सकती। एक इंसान की उम्र दूसरे इंसान को नहीं लग सकती है। सवाल नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि दज्जाल कितने दिनों तक जमीन पर रहेगा? आपके ऑप्शन हैं ए 30 दिन तक, बी 40 दिन तक, सी 50 दिन तक, डी 60 दिन तक। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी 40 दिन तक। दज्जाल 40 दिन तक जमीन पर रहेगा। सवाल नंबर 6, उम्मुल किताब यानी किताबों की माँ किस किताब को कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए कुरान मजीद को, बी तौरात को, सी ज़बूर को, डी इंजील को। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए कुरान मजीद को। उम्मुल किताब यानी किताबों की माँ कुरान मजीद को कहते हैं। सवाल नंबर 7, तुर्की के अलावा बर्रे आज़म यूरोप में कितने मुसलमान मुल्क वाक़े हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 1 मुल्क, बी 2 मुल्क, सी 3 मुल्क, डी 4 मुल्क। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी 2 मुल्क। तुर्की के अलावा बर्रे आज़म यूरोप में 2 मुसलमान मुल्क वाक़े हैं। सवाल नंबर 8, कुरान मजीद में इनमें से किस पर अल्लाह ताला की लानत करार दी गई है? आपके ऑप्शन हैं ए झूठ बोलने वाले पर, बी नमाज छोड़ने वाले पर, सी फजूल खर्ची करने वाले पर, डी रोज़ा छोड़ने वाले पर। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए झूठ बोलने वाले पर।
قرآن مجید میں جھوٹ بولنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت قرار دی گئی ہے؟ سوال نمبر 9، روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سعودی عرب کے کون سے شہر میں واقع ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے ریاض میں، بی جدہ میں، سی مکہ مکرمہ میں، ڈی مدینہ منورہ میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی مدینہ منورہ میں۔ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سعودی عرب کے مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ سوال نمبر 10، تراویح کی نماز کون سے اسلامی مہینے میں ادا کی جاتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے شعبان میں، بی رمضان میں، سی شوال میں، ڈی سفر میں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی رمضان شریف میں۔ تراویح کی نماز رمضان شریف میں ادا کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 11، جسم کے کون سے حصے کے بال کھینچنے سے موت ہو جاتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سر کے بال، بی بغل کے بال، سی ناک کے بال، ڈی پیر کے بال۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی ناک کے بال۔ ناک کے بال کھینچنے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 12، وہ کون سی عورت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے زبان درازی کرنے والی، بی جھوٹ بولنے والی، سی چغلی کرنے والی، ڈی حسد کرنے والی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے زبان درازی کرنے والی۔ زبان درازی کرنے والی عورت جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ سوال نمبر 13، قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے زکوٰۃ کا، بی روزوں کا، سی نماز کا، ڈی حج کا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی نماز کا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 14، کون سے نبی لوہے کو اپنے ہاتھوں سے موم کی طرح پگھلا دیا کرتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت داؤد علیہ السلام، بی حضرت ہارون علیہ السلام، سی حضرت شعیب علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو اپنے ہاتھوں سے موم کی طرح پگھلا دیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 15، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے فجر کی نماز، بی ظہر کی نماز، سی عصر کی نماز، ڈی مغرب کی نماز۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی مغرب کی نماز۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری نماز مغرب کی پڑھائی تھی۔ سوال نمبر 16، کون سا گوشت کھانا تو حلال ہے لیکن بیچنا حرام ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے مرغے کا، بی کبوتر کا، سی تیتر کا، ڈی
कुर्बानी का आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी कुर्बानी का। कुर्बानी का गोश्त खाना तो हलाल है लेकिन बेचना हराम है। सवाल नंबर 17, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कितनी मर्तबा पैदल हज किया था? आपके ऑप्शन है ए 11 मर्तबा, बी 17 मर्तबा, सी 20 मर्तबा, डी 27 मर्तबा। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी 20 मर्तबा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 20 मर्तबा पैदल हज किया था। सवाल नंबर 18, काबिल ने जब हाबिल को कत्ल किया उस वक्त काबिल कितने साल का था? आपके ऑप्शन है ए 15 साल का, बी 20 साल का, सी 25 साल का, डी 30 साल का। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी 25 साल का। काबिल ने जब हाबिल को कत्ल किया उस वक्त काबिल 25 साल का था। सवाल नंबर 19, रोजाना कितनी मर्तबा इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता? आपके ऑप्शन हैं ए 100 मर्तबा, बी 300 मर्तबा, सी 313 मर्तबा, डी 333 मर्तबा। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी 333 मर्तबा। रोजाना 333 मर्तबा इस्तग़फ़ार पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं होता। सवाल नंबर 20, हाथ और बाजू की रगें नजर आना किस बात की अलामत है? आपके ऑप्शन है ए अमीर होने की, बी बुढ़ापे की, सी नजरे बद की, डी लंबी उम्र की। आपका वक्त शुरू होता है अब। कि सही जवाब है कि कहते हैं कि जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो उसकी जिल्द नाजुक हो जाती है और पतली भी। यही वजह है कि उम्र के साथ जिल्द छलकने लगती है और हाथ और पाँव पर रगें नमूदार होने लगती हैं। लेकिन अक्सर देखने में आया है कि जवान लोगों के हाथों और पाँव पर मौजूद होती हैं। तो इस बात से मालूम होता है कि इस मामले का बुढ़ापे और जवानी से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, उम्र के साथ जिल्द में तब्दीली जरूर आती है मगर उम्र इस मसले की वजह नहीं है। सवाल नंबर 21, नमाज में बुरे ख्यालात आना किस चीज़ की अलामत है? नाज़रीन इकराम, हम आपको बताते हैं कि नमाज में बुरे ख्यालात क्यों आते हैं। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक यहूदी आता है और कहता है कि है अली, जब हम इबादत करते हैं तो हमारी इबादत में कोई वसवसा नहीं आता और जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो बहुत वसवसे आते हैं, तो ये क्या है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि एक घर मालदार है और एक गरीब है। ये बताएं चोर किसके घर में आएगा, मालदार के आएगा या गरीब के आएगा? तो वह अर्ज़ करता है कि मालदार के आएगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा ही है, जिसके अंदर ईमान की दौलत है यानी मुसलमानों के अंदर ईमान की दौलत है तो शैतान उन्हें लड़खड़ाने आता है, और तुम्हारे अंदर ईमान की दौलत नहीं तो तुम्हारे पास वो क्या करने जाएगा। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाए।